दिवाली। दोस्तों, इस दिवाली उत्कर्ष ला रहा है दिवाली ट्रिपल धमाका। उत्कर्ष के यूजीसी नेट ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। पर याद रखिए, ये छूट सिर्फ 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर ट्रिपल दिवाली धमाका छूट का फायदा उठाइए। और दोस्तों, जेआरएफ बनने का सपना साकार कीजिए सिर्फ उत्कर्ष के साथ। Hello students, welcome to the class. So today we are talking about essay on criticism. Essay on criticism is not an essay basically. Why this concept is being taken? ये essay on criticism poetry है जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है and he has given it a title like essay. ये इनका first work है in a poetic section जिससे इनको recognition मिली थी. People started knowing that yes, there is a critic who is a classicist and is writing about the classicism, is talking about the various classical critiques and their ideologies. Because इसने केवल ऐसा नहीं है कि क्लासिकल पोइट लाइक होमर, वर्जिल, ओविड वगैरह को फॉलो कराओ, बट ही हैज़ ऑल्सो followed the norms of classical critiques. So essay on criticism, let's start with that. Alexander Pope, he was born in 1688 and died in 1744. He died out of tuberculosis and he used to take opium to reduce his pains for that. So his work, Essay on Criticism, is an entity जिसके अंदर इन्होंने criticism के बारे में काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ लिखा है. So basically Alexander Pope 1688, as I told you, he was born. So after 1710 इनके वर्क्स आने शुरू हुए थे, but he became a part of Spectator Club in Tatler Club in 1609. और इन्होंने उनके साथ छोटे छोटे कुछ एसेज लिखने शुरू करे थे. He started with the essay writing and with the critical writing. So he had an idea not about the literature but about the society. टैटलर के अंदर जो हिपोक्रिटिकल या जो इंग्लिश सोसाइटी थी, उनके मैनरिज्म, उनकी चीज़ों को लेके जो टैटलर ग्रुप है वो काम करता था. एंड अलेक्जेंडर पोप हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड हिज जर्नी इन अ सेम वे. सो उसी जर्नी के साथ जो इन्होंने ये अपना काम स्टार्ट करा, ही स्टार्टेड राइटिंग. Then he became a part of Spectator Club in 1711. Until then he had an idea of classicism and writings, different things. So in the same way, like when he wrote Essay on Criticism, that shows his deep down thoughts and his deep knowledge about the criticism and the classical writers. So this is not only he has given the suggestion to the people only or the writers of his age, he was not only giving suggestions to the writers and people of his age, but he was also following it. ऐसा नहीं है कि वो केवल सजेशन दे रहा था, वो केवल लोगों को बोल रहा था कि ऐसा करो, but he was also doing it. कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें कर भी रहा था. So in that same thing, when he was reading all the classical writers, तो यहाँ पर इसने Essay on Criticism के अंदर जो सबसे important बात कही है, वो इसने यही कहा है कि the writers should read the classical writers, classical जो critiques हैं उन सबको पढ़ना चाहिए. तो इसके अंदर सबसे पहले ये आ जाएगा, he justifies yeah, you can say not justifies, but he promoted
the classical writings and writers. He said it is important to have knowledge it is important to have knowledge about classical literature and rules. कि क्लासिकल रूल्स कौन से हैं लिटरेचर के वो पता होना चाहिए. एंड इन द सेम डायरेक्शन ही फॉलोड five major classical critiques in this literary work. These writers are Horace, you can start with in a sequence, Aristotle, Horace, Virgil, Longinus and Quintilian. उसने इन सारे राइटर्स को फॉलो करा है, इन सारे राइटर्स के नॉर्म्स फॉलो करे हैं. एंड ही सेड दैट फॉलोइंग दीज राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली जो नॉर्म्स इन्होंने दिए हैं, लाइक एरिस्टोटेलियन थियोरी ऑफ इमिटेशन, एरिस्टोटेलियन आइडियाज अबाउट द इमिटेशन एंड राइटिंग लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्जिल्स नॉर्म ऑफ राइटिंग अबाउट नेचर, फॉलो नेचर, पैस्टोरल इकोलॉग्स जो इन्होंने लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Longinus is basically a writer who was considered as the first romantic critique because he talked about following the natural instincts, and he divided the qualities in the innate qualities and the laborious one. Horace is the first intellectual critique who talked about the various instincts and qualities of writing. He talked about the poetic genius and license. He gave various terms. Longinus talked about the various rhetorics to be followed. And Quintilian has given the analysis and has talked about the ideologies that what one should follow, what should not follow. तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज की बात करी है, विच वी आई विल शो यू कि कौन सी बात किसने कही है. मैं वो क्राइटेरिया भी आप लोगों को डेफिनेटली देने की कोशिश यहाँ पे करूँगी. सो दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ये जो आपका लिटरेरी वर्क है ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. This literary criticism is divided into 3 parts. ठीक है.
नाउ द क्वेश्चन इज कौन से हैं वो 3 पार्ट्स जिसमें ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिवाइड है. फर्स्ट इज suggestions to poets, या इसको लिख सकते हैं how to be a good poet. As usual criticism है तो सबसे पहले इसी चीज की बात की जाएगी. सेकेंड, suggestion to the critiques or how to be a good critique. Third, how to write a good और क्वालिटी पोयम. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, टू अचीव sublimity. ठीक है, थ्रू देयर वर्क हाउ टू अचीव sublimity in the work, how to achieve sublimity in the work of art or literature. इसको आर्ट या लिटरेचर जो भी कहो, लेकिन ये 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइडेड है. दिस इज द क्राइटेरिया विच दे फॉलोड फॉर देयर राइटर्स. ये इन्होंने अपने राइटर्स को सजेस्ट किया है कि दिस इज व्हाट यू कैन डू टू अचीव योर सब्लिमिटी, दिस इज व्हाट यू कैन डू टू अचीव योर not sublimity but like the fame, to get the fame what a writer can do. ठीक है, next now is what is the actual division. Now we will work on the parts. So first part is line 1 to 200, जिसमें इन्होंने क्या दिया है, सजेशन टू पोएट्स. अब इन्होंने अपने पोएट्स को क्या क्या सजेशन दिया है उसे देखते हैं. How to set the poetic genius and critical taste against each other. ठीक है, first point, how to set the poetic genius and critical taste, how to set the and critical taste against each other. Second is knowledge of classical rules.
थर्ड, ठीक है, जितने भी क्लासिकल राइटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने जो रूल्स दिए उसके बारे में पता होना चाहिए. कमांड ओवर गुड पोइटिक लैंग्वेज, then fourth, practice rhetorics and poetic composition. Then be a self critique first. अब ये क्योंकि फर्स्ट पोर्शन है, मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसने कौन कौन से राइटर्स को किस तरीके से फॉलो करा है. मतलब हम जो क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं, हाउ टू सेट द पोइटिक जीनियस एंड क्रिटिकल टेस्ट अगेंस्ट ईच अदर, ये जो लिया है दिस इज फ्रॉम क्विंटिलियन. नॉलेज ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड लिटरेचर, एरिस्टोटल. Command over good poetic language, Horace. Practical use of rhetorics and good composition, Longinus. Be a self critique first, Horace. ठीक है. अब इसमें इन्होंने जो फॉलो आपके क्लासिकल लिटरेचर लिखा है, नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर इज ओके, लेकिन इसके साथ जो वर्जिल का रूल आएगा वो यहाँ पे क्या है, इन्हीं से मिलता हुआ फॉलो क्लासिकल्स. जो इसका नारा है फॉलो क्लासिकल्स, दैट इज ऑफ वर्जिल. क्योंकि यहाँ क्लासिकल्स को क्या बोला है, नेचर. नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर को क्या बोला है इन्होंने यहाँ, फॉलो क्लासिकल्स को ही कॉल्ड नेचर. एंड क्लासिकल लिटरेचर को क्या बोला है, एंड रूल को विट. इस तरीके से इसे हम देखेंगे. नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट. टू 2012-560 और इसमें इन्होंने क्या कहा है, हाउ टू बी अ गुड क्रिटिक. इसके लिए जो सजेशंस हैं वो देखते हैं. सो द फर्स्ट सजेशन इज knowledge of classical rules, second, a critique should be a poet first. Third, a critique should not be biased. Fourth, the criticism should not be biographical. It should not be biographical. Then a critique should be psychologically fit.
then he should respect the opinion of other critics. And last, he should follow morality. मतलब इमोरल जजमेंट या चीज़ें वो पास नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इसके बाद जब हम ये क्रिटिसिज्म देख रहे हैं तो नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड रूल्स अगेन फिर से यहाँ पर आ जाएगा. दैट हैज बीन सेड बाय एरिस्टोटल. Critique should be poets first, Virgil. A critique should not be biased, that is by Quintilian. Biographical criticism के लिए नॉर्मली हम देखें तो हमको फिलिप सिडनी वगैरह ने भी इसके लिए मना किया है. बट अगेन ही ऑल्सो फॉलोड एरिस्टोटल. फिलिप सिडनी का जो क्रिटिसिज्म था. ही शुड बी साइकोलॉजिकल फिट, हॉरेस. ही शुड रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर क्रिटिक्स, हॉरेस. शुड फॉलो मोरालिटी, लॉन्जाइनस. ये है क्राइटेरिया जिसको वो फॉलो करके अपने क्रिटिसिज्म देता आया है. सो दिस इज अबाउट क्रिटिक्स. उसने ये सब चीज़ें कही कि उसको क्लासिकल रूल और लिटरेचर पता होना चाहिए. सबसे पहले ही शुड बी अ पोएट. अगर वो पोएट ही नहीं है अच्छा तो वो कैसे बताएगा कि जो पोएट लिख रहा है वो सही है या नहीं है. जब तक उसको एक अच्छी पोएट्री लिखनी नहीं आती है तो वो किसी पोएट्री को जज नहीं कर सकता, किसी पोएट्री को एनालाइज नहीं कर सकता. ही शुड नॉट बी बायस्ड. अगर किसी से पर्सनली कोई बात है तो उसको वो उसके जजमेंट में, एनालिसिस में नहीं डाल सकता. किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल इश्यूज को उसकी पोएटिक एनालिसिस के अंदर नहीं लाना चाहिए. साइकोलॉजिकली ही शुड नॉट थिंक दैट ही इज द बेस्ट और सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज शुड बी देयर कि वो कभी भी गुस्सा हो गया था इसलिए कुछ कह दिया था, उसने कुछ और बात कह दी थी इसलिए ये हो गया था. नो, ही शुड बी साइकोलॉजिकली फिट. Then he should respect the opinions of other poets. उसने other critics उसने ये कहा कि the poets of my time are just want the sun to shine on their head. तो जो वो कह रहे हैं बस उसे सही मान लिया जाए, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाए, बाकी सबको डिम लाइट कर दिया जाए. तो he said the critics of my time wants the sun to shine on their head. They don't want to listen to others. So a critique should be like that, that he is respecting the opinions of other critics as well. और दूसरा, उसके जितने भी एनालिसिस है वो मोरालिटी बेस्ड होने चाहिए. इमोरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता. नाउ द थर्ड पार्ट. सेवन 44 लाइन्स तक इसमें इन्होंने लिखा है हाउ टू राइट अ गुड पोएम. हाउ टू राइट अ गुड पोएम. सो उसके लिए जो इन्होंने क्वालिटीज़ बताई हैं, देर आर मैनी बट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पोएम के अंदर. सो in those qualities, बेसिकली एक अच्छी पोएम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं उसकी बात इन्होंने करी है. तो जो फर्स्ट क्वालिटी आएगी वो क्या आएगा, इन्होंने बोला कि अवॉइड एलिट्रेशंस. रिपीटेटिव जो साउंड्स होते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, अवॉइड एलिट्रेशंस. सेकेंड, अवॉइड सर्पेंटाइल लाइन. जो अलेक्जेंड्राइन लाइन थी या स्पेंसेरियन लाइन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ऑफ आयम्बिक हेक्सामीटर. स्पेंसेरियन स्टैंजा में जो लास्ट लाइन है, 9th लाइन आयम्बिक हेक्सामीटर की, उस लाइन को इन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए. थर्ड,
avoid exaggerated metaphors. Fourth, follow classical rules, ठीक है, and tradition. So classical rules and tradition को follow करना चाहिए. Elevated and dignified composition. जो कॉम्पोजिशन है दैट शुड बी एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड, वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर कॉम्पोजिशन नहीं है तो आप मैटर कुछ भी डाल रहे हो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. देन सिक्स्थ इज मेंटेनिंग द डेकोरम इन द पोएम फॉर पोएटिक ब्यूटी. मेंटेनिंग डेकोरम, एक डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन करना होगा. देन मॉरल और पोएटिक मैसेज शुड बी क्लियर. जो भी उस पोएट का मोटिव है कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो मोटिव प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे. एक्सेजरेटेड मेटाफर्स का मतलब हुआ यहाँ पे, लेट मी टेल यू. फर्स्ट यहाँ पर आता है एलिट्रेशंस. एलिट्रेशंस किसको बोलते हैं? रिपीटिशन ऑफ साउंड्स. कॉन्सोनेंटल या वॉवल साउंड्स के रिपीटिशन को नहीं करना है. तो ये जो सर्पेंटाइल या स्पेंसेरियन लाइन है, इसको अलेक्जेंड्राइन लाइन भी बोला जाता है. इसको यूज नहीं करना है जो आयम्बिक हेक्सामीटर की है. एक्सेजरेटेड मेटाफर्स का मतलब हुआ यहाँ पे बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, जिसको हॉरेस ने पर्पल पैसेज करके बोला है. क्लासिकल रूल्स एंड ट्रेडिशंस हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं. डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन के लिए लॉन्जाइनस ने ऑलरेडी उसमें बोला है कि कॉम्पोजिशन प्रॉपर होना चाहिए. मेंटेनिंग डेकोरम, दैट इज अगेन फ्रॉम हॉरेस ही हैज टेकन. पोएटिक मैसेज और लैंग्वेज या जो मोटिव है दैट शुड बी क्लियर, ये भी बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट is poet should be given the liberty poet should take the liberty to coin new words or to find good ancient words for a better एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग. सो दूसरी लैंग्वेजेस से आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो. यू कैन गिव अ बेटर like expression of emotion by utilizing the archaic words and archaic words and coining the new word which can better express your feelings.
or emotions, or the like the message can be clearly given what you want to say. So this is ये 3 criteria इसने follow करे, इन 3 parts के अंदर इसने divide करा पूरी that poem को, and he has given the suggestions to the contemporary writers to write a good and proper poetry. Now इन्होंने यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस यूज करा है अपनी खुद की पोइट्री में, दैट डिवाइस वी यूज टू कॉल अंटाना क्लासेस. ही यूज दिस पोइट्री डिवाइस जिसके अंदर आता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स with different meaning every time. और इसके लिए इन्होंने 2 वर्ड्स यूज करे हैं. फर्स्ट विट, विट को इन्होंने 44 टाइम्स यूज करा है विद अ डिफरेंट मीनिंग. एंड सेकेंड इज नेचर, नेचर को इन्होंने 21 टाइम्स यूज करा है विद अ डिफरेंट मीनिंग एवरी टाइम इन द पोयम. सो ये फैक्ट है जिसके अंदर इन्होंने ये 2 एग्जाम्पल हैं विट एंड नेचर के, जिसको इन्होंने बार बार यूज करा है. अनदर थिंग ही प्रमोटेड, ठीक है, जो राइटर्स इन्होंने प्रमोट करा है, सो ही हाईली प्रमोटेड होमर. होमर टू his contemporary writers ki one should read this writer for sure to have a better understanding of the classical literature. ठीक है, ये हैं इनके जो प्रॉपर आइडियोलॉजी है वो मैंने आपको यहाँ बताया इसके बारे में. नाउ देर आर डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट कोट्स एज वेल जो मैं आपको लिखवा देती हूँ. ये कोट्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोड्स यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ. आपने सुन भी रखे हैं, इन पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. फर्स्ट इज दोज रूल्स आर ओल्ड डिस्कवर्ड. देखिए इसमें ये ओल्ड रूल्स की बात कर रहा है. डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड. ठीक है, आर नेचर स्टिल बट नेचर मैथडाइज्ड. अब यहां पे नेचर को 2 बार यूज किया है. ठीक है, दिस इज एंटाना क्लासेस का भी आपको एग्जाम्पल दे दिया. एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. देन इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. ये बहुत कॉमनली सुना हुआ है. A little learning is a dangerous thing. Drink deep or taste not. Or taste not the Persian spring. It is like the fresh water which you should gain more and more. Learning को ज़्यादा से ज़्यादा करो. It's not to be tasted only, but you should drink it like anything. ठीक है, इसके बाद आपका आता है be the Homer's work, your study and delight.
read them by day and meditate at night. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनका, जिसमें ही इज़ प्रमोटिंग होमर, सो इसे भी ध्यान रखेंगे. देन लास्ट विच वॉज अ सजेशन टू द poets and the critique. True ease in writing come from art. Come from art, not chance. Okay, as those move easiest, ठीक है, as those move easiest who learn to डांस. इजीली कौन मूव कर सकते हैं? जिन्होंने डांस सीखा हो. बाय चांस ये चीज़ें नहीं आती है. सो ही सेड कि वन शुड हैव अ डीपर नॉलेज ऑफ क्लासिकल्स. नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट वन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूल रश इन. ये भी इन्होंने क्रिटिक के लिए ही कहा है. फूल रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. इसकी ये लाइन याद रख लीजिए. सो दिस इज बेसिकली योर Alexander Pope's essay on criticism, where he gave you an wholesome idea how to write, how to create criticism, how to create literature like poem, a best poem, and how to be a best poet. So this is the critical work, essay on criticism, which is not an essay but a poem. So with us you will be here to learn more and more things about your literature and the classical things. Now I'm going to give you a big announcement for you, that is the Diwali Dhamaka. Right, so the Utkarsh family has brought the big Diwali Dhamaka for you, the triple Dhamaka. The offer has started on 24th of October and it will be till 3rd of November. 3 नवंबर तक हमारा ये ऑफर रहेगा आप लोगों के पास, जिसमें उत्कर्ष ऐप पे मौजूद सभी UGC नेट कोर्सेज पे आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स. 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी और साथ में पेपर 1 का फ्री रिकॉर्डेड कोर्स. आप उसे कभी भी कैसे भी देख सकते हैं, अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं दिसंबर के लिए और इसके बाद के एग्जाम्स के लिए भी. सो हरी अप गाइज, डाउनलोड द ऐप नाउ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ योर कोर्सेज विद उत्कर्ष ऐप. राइट, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड.